Physics in YouTube channel. Today we start the physics in lecture series of solutions in which we discuss the problems and their solutions. The book we started in the solution series is called Introduction to the Solid State Physics by Charles in your notification bar. Today we start chapter number 2, reciprocal lattice. In this we start with the interplanar spacing. In the chapter you know about the interplanar spacing. Consider a plane HKL in a crystal lattice. We suppose a plane having the HKL plane. In the Miller series you studied about the HKL plane, how to draw a plane in a crystal lattice. We consider the cube crystal system. So all problems are discussed in the simple cubic cell. The interplanar distance or interplanar spacing is the perpendicular distance between the adjacent planes in the family. In this we consider a family of planes, not a single of plane. The interplanar spacing or interplanar spacing is about the series of planes or family of planes you know about in the Miller indices. You study about the family of planes. In this we study in the interplanar spacing about the perpendicular distance between the two adjacent planes in the family of planes. Like this, we have a dot representing the atoms and the lines are representing the family of planes, like 1 1 0. This family of planes are here, and the perpendicular distance between D110 is called the interplanar spacing of the plane D100, and also the 200 and their respective distance between the two adjacent plane is D220, also this and also this. So interplanar spacing is DHKL is equal A over H square plus K square plus L square. Sorry, here is L square, is mistake. 1 over under root, ठीक है, 1 over 2 represent the under root. So DHKL represent the lattice spacing and its unit is angstrom, ठीक है. So A is a distance between in lattice constant, so its unit is angstrom and also in a nanometer. This is called the Miller indices and it is units less. So the formula of interplanar spacing is DHKL A over H square plus K square plus L square under root. So let's start the problem 1. We know about the crystal translation vector R is equal HA1 plus KA2 plus LA3. So also reciprocal vector G is equal HB1 plus KB2 plus LB3. You know all about in chapter number 1 crystal system, and also discuss in the reciprocal crystal system. You know about these two vectors used for translation of vector in between the atoms in crystal lattice. So a part of this problem is prove that the reciprocal lattice vector G HB1 plus KB2 plus LB3 in the perpendicular to this plane. So we know about that the reciprocal lattice. So the G HB1 plus KB2 and LB3 are perpendicular to the plane HKL. So also we are start from to prove this reciprocal lattice vectors G HB1 plus KB2 plus LB3, where HKL are the Miller indices and B1, B2 and B3 are the vectors. So these are perpendicular to the plane. So we show that the G is perpendicular to non-parallel vectors in the plane. So we are to prove that the G is perpendicular to non-parallel vector in the plane. So plane HKL, it is intercepts are A1, A2 and A3. I represent in the R
above our translational vector. So their ratio is equal 1 over h, ratio 1 over k, ratio 1 over l. These two vectors in the planes have the chosen, so that we choose the two different plane vectors, also 1 over h a minus 1 over k a2 and 1 over h a1 minus 1 over l a3. These two vectors, so we know that these vectors are not parallel. From vector calculation, we know that the dot product between two vectors, so we do the dot product, so the dot product is 0. Also we do the dot product between these two vectors, so also these so also this is 0. So we know that G is perpendicular these two vectors and hence perpendicular to the plane. So it's proved that these two planes are non-parallel and G is perpendicular that plane HKL. So two vectors a1 over h minus a2 over k and a1 over h minus a3 over l lie in the same plane, where their dot product between two the vectors is g h b1 plus k b2 and l b3 is 0. तो अगर मैं आपको उर्दू और हिंदी में इस बात को समझाने की कोशिश करूं तो हमने इस प्रॉब्लम में ये प्रूव करना था कि एक वेक्टर हमारे पास जो रेसिप्रोकल वेक्टर है जी एच बी वन प्लस के बी टू प्लस एल बी थ्री, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास एच के एल प्लेन के. तो हमने दो वेक्टर सपोज किए जो एक ही प्लेन के थे और हमने उन्हें साबित करना था कि वो आपस में उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, ज़ीरो है. तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो कब होता है? जब दोनों के दरमियान एंगल ज़ीरो हो. आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास कॉस थीटा होता है, तो हमने जो है कॉस 90 प्रूव करना है, सॉरी. तो हमारे पास परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास एंगल क्या होता है, 90 होता है. तो cos 90 हमारे पास 0 होता है. ठीक है. सो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे और हमारे पास इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. हमने पढ़ा था कि अगर सेम टू सेम हमारे पास दोनों में उसके यूनिट्स हों वेक्टर्स के, तो उनका जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है वो 1 आता है. ये हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था. अगर दोनों के दरमियान एंगल हमारे पास क्या हो, 90 हो, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 0 आता है. तो हमने यही प्रूव किया है कि दोनों वेक्टर्स जो एक ही प्लेन के थे हमने उन दोनों को लिया और दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट करके देखा. ठीक है. अगर डॉट प्रोडक्ट किया तो हमारे पास जवाब क्या है, 0 आया. तो ये साबित हुआ कि ये जो प्लेन के साथ हमारे पास रेसिप्रोकल वेक्टर, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल हमारे पास क्या होता है, 90 का होता है. ठीक है. आगे बी है हमारे पास, प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पैरेलल प्लेन ऑफ द लेटेस्ट इज इक्वल डी एच के एल इज इक्वल 2 पाई ओवर mod of g. G is reciprocal latest vector. Assuming that the indices h k l act at least one of them is 0. सो हम साबित करेंगे कि एच के एल में से हमारे पास क्या है, कोई एक वेक्टर जो है वो नॉन ज़ीरो है. तो हम जो है वो उन्हें साबित कर लिया कि हमारे पास एच जो है वो क्या है, नॉन ज़ीरो है. के और एल हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 0 हैं. तो बाय डेफिनेशन फैमिली ऑफ प्लेन डिवाइडेड बाय द a1 इनटू h पार्ट विद इक्वल लेंथ देन वेक्टर r1 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r1 0 हो जाएगा टू एंड्स ऑफ वन प्लेन एंड r2 हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 ओवर h हो जाएगा टू द एडजेसेंट प्लेन. तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर h a1 वेक्टर आ जाएगा ऑन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फैमिली ऑफ प्लेन्स, जिसे हम प्रीवियस जो प्रॉब्लम है उसमें सॉल्व कर चुके हैं. तो हमारे पास जो इसकी परपेंडिकुलर आएगा वो हमारे पास डी एच के एल इज इक्वल एन यूनिट वेक्टर डॉट ए ओवर एच आ जाएगा हमारे पास. ठीक है. तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो n है वो क्या है, वो हमारे पास g ओवर g का मैग्नीट्यूड. यानी अगर हम g वेक्टर को देखें तो g वेक्टर आपको पता है वेक्टर किस पर होता है, मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर जो है. ठीक है. तो हमने उसे यहाँ हमारे पास वो वैल्यू आ गई, इसे हमने n की जगह यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास a1 ओवर h डॉट g वेक्टर ओवर g का मैग्नीट्यूड आ गया. ठीक है. तो हमने इसका मॉड लिया. जब हमने a डॉट को g वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो हम जानते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जब दो ट्रांसलेशनल वेक्टर और दो हमारे पास रेसिप्रोकल वेक्टर जो है उनका डॉट हो तो हमारे पास 2 पाई m आता है. तो जब हमने उसकी वैल्यू यहाँ पुट की तो हमारे पास वैल्यू है 2 पाई ओवर
जी मॉड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे नेक्स्ट है हमारे पास सी, शो दैट अ सिंपल क्यूबिक लेटस जो है उसका हमारे पास क्या है, डी स्क्वेयर इज़ इक्वल ए ओवर एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। तो हम सैम्पल क्यूबिक में जानते हैं कि हमारे पास जो रेसिप्रोकल वेक्टर हैं वो क्या होते हैं, b1 इज़ इक्वल 2 पाई ओवर ए एक्स प्लस b2 इज़ इक्वल 2 पाई ओवर ए वाई और b3 2x ओवर ए हमारे पास z। ठीक है, हमारे पास x y z जो है क्या है वो हमारे पास सिंपल क्रिस्टल लेटस हैं, जबकि b हमारे b1 b2 b3 हमारे पास क्या हैं, रेसिप्रोकल लेटस हैं। वेयर x y z आर द यूनिट वेक्टर्स x y z डायरेक्शन 10। तो हम इसे करेंगे g1 के साथ। तो हमने यहाँ क्या किया, b1 b2 और b3 की जगह g की इनकी वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास जी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 2 पाई ओवर ए होल स्क्वेयर एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ हमने डी एच के एल हमारे पास जी स्क्वेयर की वैल्यू जो हमने पीछे प्रूव की है, तो हमारे पास 2 पाई स्क्वेयर ऑफ जी मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर आ गया। और जी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर है। तो हमारे पास हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो हासिल हो गया। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जी हमारे पास क्या है 2 पाई ओवर ए और जी का मैग्नीट्यूड है, और जी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। वो हमारे पास क्या आई, 2 पाई ओवर ए होल स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। इसको हम जी मैग्नीट्यूड के जगह जो है वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास भी वैल्यू ए ओवर एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर अंडर रूट आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है लेक्चर की समझ आएगी होगी। इसके अलावा ये नोट्स जो हैं हमारी वेबसाइट पे physics in786.blogspot.com पर भी मौजूद हैं। आप वहाँ जाकर भी इन्हें जो है वो हासिल कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को फिज़िक्स इन को फॉलो कीजिएगा, आप वहाँ भी हमसे ये प्रॉब्लम जो है जो डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।